Namaskaram and a very good afternoon. How are you guys doing? I hope we are live, are we? I guess we are. Good afternoon. Hi Anchuman, Vidushi, Saqib, Battler, Ashish, Rachayita, Nidhi, Aditya, Abhinav, Prathna, Sonia, Devyani, Ayush, Vishu, Astha, Anchika, Pavan, Priyanka, Harshika, Krish, Samiksha. Good afternoon. How are you guys doing? हाय निधि, हाय गौरव, हाय अभिनव. अरे मिस ही कर लिया शाम से सुबह तक. Okay, so today we have another session on sentence correction for the foundation YouTube batch, and it's a short half an hour session. We have done two such sessions of sentence correction earlier. In one, we did 1 to 8, question number 1 to 8. In the second one, we did question number 9 to 15, and today we are going to do questions from number 16 onward. So it's practically the same series, the same pattern. If you want to do question number 1 to 15, you can watch the remaining two sessions. One was on 27th of May, if I'm not wrong, and the other one was also in May somewhere. So today we are going to do from question 16 onwards. I'm fine, thank you. My fingers are not that good, but yeah, I'm managing somehow. I was able to cook, and that's what matters. A few announcements. There are unbelievable discounts going on wherein you're getting a 6-month subscription along with a 2-month free subscription only for 20,900 rupees for Plus, and an 8 subscription in which 2 months are free for 30,400. And you can use my code Karishma Live and get these discounts. I know nobody uses my code, but it's still my duty, so I will tell you my code. Okay, so just in case you're looking for a discount, you can use my code. Then the CAT SAT is happening again on the 25th of June. It was also on the 18th of June. It's happening again on the 25th of June. Same slots, 12 p.m. and 5 p.m. 60 minutes, 30 questions, beginner to moderate level. Amazon vouchers up till 5,000 rupees, up to 100% scholarship, profile evaluation by CAT Gurus. So again, this is happening on 25th. You can take it. Then you can buy the test series for 2,000 rupees only. You have 25 full-length mock tests and 10 monthly sectional tests in the same, included in the same. The CAT Assure program is beautiful. It allows 50 learners, 50 learners, to study with us 1 year under Iconic, and we refund the fees if you make it to any of the IIMs. If you do not make it to an IIM and you want to prepare again, then the next year is on us. It's free for you. So it's a beautiful program. You can subscribe to Unacademy today and avail the Iconic Assure program, and the code still remains the same to avail this, which is Karishma Live. There is a Target Achievers batch which is starting on June 29. I am also a part of this batch, and we are going to do vocabulary for new students in this batch. तो हम पहले पढ़ चुके हैं vocab, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए vocab रिपीट होगी. vocab की 9 क्लासेस हैं. पहले 10 करवाई थी, अब 9 है. टाइम कम है तो हम थोड़ा स्पीड बढ़ाकर 10 को 9 में करेंगे. तो ये स्टार्ट होगा 3 जुलाई से. कोर्स ऑलरेडी लॉन्च्ड है. आप जाकर एनरोल कर सकते हैं, इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, एंड यू कैन अगेन यूज़ कोड करिश्मा लाइव एंड जॉइन अस. दीज आर द फीचर्स ऑफ द प्लस एंड द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन. ठीक. क्या बनाया लंच में? दाल रोटी. All right, we have done question number 9 to 15 in the previous section. Let's do the 16th one. No, the test series are a part of Iconic and Plus, so you already get it. In fact, in Iconic, you don't have to pay for GDPI also. GDPI is also included. In Plus, you will have to pay for GDPI if you get a call. If you want to prepare with us, if you prepare with somebody else, then of course it's a different matter. And you will get the tests included. ठीक. कुछ नहीं, जल गई थी आदित्य. चलो भाई, लग जाओ काम पर. Vertical column correction कर लो guys. Like I said, I have taught you the techniques, but I don't know how to market them. So vertical column correction is when you read the sentences vertically in columns by dividing them rather than by reading them horizontally.
वर्टिकली पढ़ेंगे, जो गलत गलत है उसे बाहर निकालते जाएंगे, जो एंड में 2 बच जाएंगे उनको कंपेयर कर लेंगे. सो यू हैव टू लुक एट द डिफरेंसेस बिटवीन द ऑप्शंस. बस वही नहीं आता, वही कला नहीं है मुझ में बकरबाजी के कोर्स लॉन्च करने की. पैरेलल स्ट्रक्चर देखना है. तो अगर आप पैरेलल स्ट्रक्चर देखेंगे, कहीं पे अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है और कहीं पर ऑफ लगा हुआ है. तो यहाँ लिखा है 52% ऑफ यूएस हाई स्कूल ग्रेजुएट्स गो ऑन टू कॉलेज कंपेयर्ड विद कैनेडाज 35%. तो पैरेलल तो नहीं है. अगर पैरेलल होता तो मैं बोलती 35% इन कैनेडा या 35% ऑफ कैनेडाज ग्रेजुएट्स. तो ये पैरेलल नहीं है. सेकेंड वाला देखो, 52% ऑफ यूएस ग्रेजुएट्स गो ऑन टू कॉलेज, इन कैनेडा इट इज़ 35%. अगेन नॉट पैरेलल. सी देखो, 52% ऑफ हाई स्कूल ग्रेजुएट्स गो ऑन टू कॉलेज कंपेयर्ड विद 35% इन कैनेडा, 15% इन ग्रेट ब्रिटेन, जापान एंड वेस्ट जर्मनी. ये पैरेलल है, तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है. The percentage of high school graduates in the US who go on to college is 52 compared with 35 in Canada. ऐसा होना चाहिए था, ना कि Canada's 35. ठीक है, तो ऐसा लिखना चाहिए था, Canada is 35, तब parallel होता. The percentage of US high school graduates going on to college is 52. That in Canada, ये तो सबसे खराब ऑप्शन है, सबसे पहले बाहर जाएगा. Doesn't even make sense. So we are घूम फिर कर back to C. Most of you have given the right answer. ठीक है, पैरेललिज्म का क्वेश्चन है, बस करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि पढ़ने में टाइम लगता है. ठीक है, आगे बढ़े. छोटू क्वेश्चन कर लो गाइस. द यूएस मैंने ध्यान नहीं दिया है. हाँ, यहाँ पर द गायब है, यहाँ भी द गायब है. ठीक, बाकी जगह द लिखा हुआ, यहाँ भी द गायब है. टेंसेस पे ध्यान देना है. Okay, everybody is saying B. Let me tell you, B is not the answer. Any other answers, please?
तौबा तौबा तौबा, फिर से गलत। पास्ट टेंस कैसे लिख रहे हो? इवन फॉर एक्सपीरियंस्ड स्कीयर्स ब्लैक डायमंड ट्रेल्स ऑफन पोज अ ग्रेटर चैलेंज। तो ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है कि अगर आप एक्सपीरियंस्ड स्कीइंग में हो तब भी जो ब्लैक डायमंड ट्रेल है वो ज़्यादा चैलेंजिंग है जितना कि लगता है कि होगा। तो जितना आपने ओरिजिनली सोचा था उससे ज़्यादा चैलेंजिंग लगेगा, ठीक है। सो इवन फॉर एक्सपीरियंस्ड स्कीयर्स ब्लैक डायमंड ट्रेल्स ऑफन पोज अ ग्रेटर चैलेंज दैन दे ओरिजिनली सीम्ड, पास्ट टेंस रॉन्ग, दैन दे ओरिजिनली सीम टू लगा देने से कुछ नहीं होता। दे पोज अ ग्रेटर चैलेंज दैन दे ओरिजिनली सीम टू, बस इतना लिख कर बात खत्म कर दी है। सी कहता है दिस सीमिंगली वुड पोज ओरिजिनली, ये दिस इज स्टूपिड। डी कहता है दैन इट ओरिजिनली सीम्ड दे वुड, पहला जैसे लगा था कि करेंगे उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, तो ये भी ठीक लग रहा है। दैन इट ओरिजिनली सीम्ड, दिस इज द सेम एज ए, दे को इट कर दिया है बस, और ये दे की वजह से भी बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास बच जाता है ब्लैक डायमंड ट्रेल्स ऑफन पोज द ग्रेटर चैलेंज दैन इट ओरिजिनली सीम्ड दे वुड, जैसा कि हमने पहले सोचा था उससे ज़्यादा चैलेंजिंग है। ओरिजिनली सीम के साथ ये फिट नहीं होता क्योंकि ये फिर प्रेजेंट में लगता है कि ओरिजिनली सीम टू, तो ओरिजिनली सीम मतलब हमेशा जैसा दिखता है, जबकि हम कहना चाहते हैं कि हमने जैसा सोचा था उससे ज़्यादा चैलेंजिंग निकला। तो एक्सपीरियंस कीयर्स के लिए ब्लैक डायमंड ट्रेल्स ऑफन पोज अ ग्रेटर चैलेंज दैन इट ओरिजिनली सीम्ड दे वुड, तो पहले जितना लगा था कि पोज करेंगे उससे ज़्यादा पोज करते हैं, दैट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। तो वो मीनिंग बी में निकल कर नहीं आता है, ए, सी और ई तो खराब आंसर्स है, ठीक है। इसमें सारा इशू कॉमा का है, कॉमा की वजह से जो आंसर सही लगता है वो सही नहीं है। अच्छा भी होगा आंसर, तो डिजाइन्ड वर्ब है, उसके बाद तुम दो एडजेक्टिव लगाओगे एडवर्ब लगाने के बजाय। डिजाइन्ड इंट्रिकेट या डिजाइन्ड इंट्रिकेटली, तो फिर बी कैसे होगा आंसर? अच्छा अगर डी आंसर है तो कॉमा आना चाहिए, पढ़ के देखो। द स्वीडिश नेवी बोस्ट्स ऑफ 2 विस्बी क्लास कॉर्वेट्स, शिप्स विथ हाईली इफेक्टिव कार्बन फाइबर स्टेल्थ हल्स डिजाइन्ड इन सच एन इंट्रिकेट एंड परफेक्ट मैनर। इसकी रिक्वायरमेंट है? बताओ मुझे, जो लोग डी आंसर चीख रहे थे। अरे तुम लोग तो तुरंत दल बदल लेते हो यार, ए, सी, ई सब बोल डाला। जो मैं पूछ रही हूँ पहले उसका जवाब तो दो, तुक्का थोड़ी लगाना है, एग्जाम में कैसे करोगे? तो अगर डी मार्क करते तो डी में प्रॉब्लम क्या है कि कॉमा लगा हुआ है। अगर डी आंसर है तो कॉमा नहीं आना चाहिए। कार्बन फाइबर स्टेल्थ हल्स डिजाइन्ड इन सच एन इंट्रिकेट एंड परफेक्ट मैनर दैट रडार वेव्स आर ऑलमोस्ट, so therefore D becomes wrong because of the comma. It's not required. ठीक, सही लाना है तो पहली बार में सही लाना है, ये थोड़ी कि 4 गलत हो गए तो 5वां मेरा सही निकला है। ये तो वही बात हो गई, कैट निकालना भले 4 अटेम्प्ट में निकालें, है कि नहीं? The Swedish Navy boasts of 2 Visby class corvettes, ships with highly effective carbon fiber stealth hulls. Again, same problem as D, designed so intricately and perfectly, comma not required. तो कॉमा की वजह से 2 ऑप्शन तो पहले बाहर हो गए। अब बी देखो,
हल्स दैट आर डिजाइन सो इंट्रिकेट एंड परफेक्ट, ये इसीलिए गलत है बिकॉज यू आर यूजिंग टू एडजेक्टिव्स टू मॉडिफाई अ वर्ब, जबकि हमको चाहिए क्या, एडवर्ब. वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब भैया. ठीक. सी देखो, द स्वीडिश नेवी बोस्ट्स ऑफ 2 Visby class corvettes, ships with highly effective carbon fiber stealth hulls. Hulls so intricate and perfectly designed that radar waves are almost completely absorbed by them. ठीक सा लग रहा है ये तो, इसको साइड रख लेते हैं. ये देखो, the Swedish Navy boasts of 2 Visby class corvettes, ships with highly effective carbon fiber stealth hulls having been designed perfectly and intricately so that भी फिट नहीं हो रहा. So therefore answer is, आया समझ. हवा में कर रहे हैं सबके सब. ठीक छे, आगे बढ़े. मेरे बताने के बाद क्या सी लिख रहे हो, अंग्रेज कहीं के. सी रख लूं, ठीक है रख लेती हूँ. ये रिवीजन नहीं, प्रैक्टिस का मामला है. आंसर से 4 ऑप्शन दूर थे बस. ठीक है. एक बार में अटेम्प्ट करने होते हैं तो एग्जाम में क्या 2-3 चांस मिलेंगे. बाकी लोगों का क्या जवाब है. तो एक बार में सही बता रहे हो या दोबारा वाली में सही बताओगे, ये बताओ. ऐसा किसने बोला क्रिश, ऐसा कोई रूल नहीं है. चलो हो गए सब होशियार. Most of the university's faculty is utterly appalled. Appalled is horrified by the decision to hire as university president the senator censured, yani scolded, criticized for influence peddling. Although there are some of these willing to extend to him a welcome that is civil on their own. Although there are some of these willing to extend. What is some of these? Some on their own are willing to extend to him a civil welcome is okay. And से contrast नहीं पता चलता तो गलत है. But some of it कैसे लिखें? Although some of it is civilly willing. हो गए सब होशियार. ठीक. सिविली अभी अब तुमने एक बार में ठीक कर दिया, हम नहीं खेल रहे. हाँ, सम ऑफ इट से 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं. मैंने इसको एंड से एलिमिनेट कर लिया, सम ऑफ इट पे पहुंची ही नहीं. ठीक. हाँ, जो हो जाए वो अच्छा है.
शाम्भवी की शार्क हंसती रहती है। बेबी शार्क है ये, डू डू डू। यहाँ पे गूगल इमोजी नहीं चलता क्या तुम्हारा? रेंज देखो लड़की की, बालों में फूल वाली बंदी से लेके शार्क तक सबको हंसा रही है। ये देखो प्रांजो ने क्या बना डाला। अब गोविंद शुरू हो गया। कहाँ से ला रहे हो ये सब? वेयर डू यू फाइंड दीज? हमको भी बताओ, टीच इट टू मी। यूट्यूब के इमोजी हैं? अच्छा, मेरे में तो नहीं आ रहे हैं। Oh my God, दिस इज व्हाट? पिंक कलर का पूप पाइल्स हो गया है क्या? Why is your poop pink? Okay, let's do it. Come on. कर लिया देवयानी, नहीं दिखा रहा। एक कह रहा है सी, एक कह रहा है डी, एक कह रहा है ई। काफ़ी लोगों का आंसर सी है। तकलीफ हो रही है देख के मुझे। ठीक है आदत। अंजुमन मैंने मार देना थप्पड़। हर्षिका, तान्या, अभिराम और साकिब ठीक है। सौरभ और शोभा भी। 30 इंचेस के सपने मत देखो शाम्भवी, होता नहीं है। The continental United States receives an average of 30 inches of precipitation a year. फिर सेमीकोलन लगा हुआ है, ठीक है? तो 30 इंच प्रेसिपिटेशन है लगभग बारिश, ठीक है? सेमीकोलन लगा हुआ है, इसके बाद फिर कंजंक्शन लगाने की क्या ज़रूरत है? ट्रांसपिरेशन फ्रॉम सॉइल एंड फ्रॉम प्लांट्स, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम सॉइल एंड फ्रॉम प्लांट्स, ये सब जगह इतना सिमिलर है अगर हम वर्टिकली पढ़ते हैं तो, लेकिन सब में अलग अलग कंजंक्शन लगे हुए हैं, ठीक है? फिर आगे कहता है रिटर्न्स अप्रॉक्सीमेटली 21 ऑफ द 30 इंचेस टू द एटमॉस्फेयर वाइल द बैलेंस द रिमाइंडर ऑफ 9 इंचेस, इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है, द रेस्ट ऑफ द 9 इंचेस, द रेस्ट ऑफ द 9 इंचेस। तो गलत जगह पर कंजंक्शन लगाया हुआ है और सही जगह पर लगाया नहीं है, तो ए आंसर है। The continental United States receives an average of 30 inches of precipitation a year. Transpiration from soil and plants returns approximately 21 of the 30 to the atmosphere, while the balance of 9 inches continues to contributes to the flow of streams and rivers. ठीक, और contribute और contributes भी देख सकते हैं।
ठीक है, तो बैलेंस के साथ क्या आएगा, कंट्रीब्यूट ही आएगा ना, तो कंट्रीब्यूट बाहर चला जाएगा, वो भी एक एरर है जिससे आसानी से हम कर सकते हैं पॉइंट आउट। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो सबसे गलत है, डी मार्क कर रहे हो तो अभी, ये कौन सी अंग्रेजी है, विद ट्रांसपिरेशन फ्रॉम सॉइल एंड प्लांट्स टू रिटर्न अप्रोक्सीमेटली, डजंट मेक सेंस। डूएबल क्वेश्चन था, तुम लोग इंचेस में उलझ गए। लास्ट ऑप्शन गायब है, ओके। इसमें लिखा है द विजिटर टू द जिनेवा लेबोरेटरी ऑफ द यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च हैज़ एन अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटी टू लर्न अबाउट कटिंग एज पार्टिकल फिजिक्स विदाउट अ गाइडेड टूर। इसमें विदाउट अ गाइडेड टूर एंड में लिखा है, जो छुप गया है मेरे वीडियो के पीछे अनफॉर्चुनेटली। सेंटेंस कहना क्या चाहता है कि पता है गाइडेड टूर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और कोई भी विजिटर वहाँ जाके सीख सकता है, तो इवन विदाउट बेस्ट यूसेज है। अफोर्ड्स विथ तो बिल्कुल ही गलत है, अफोर्ड्स द विजिटर विथ, अफोर्ड्स विथ कौन सी अंग्रेजी है, परमिट्स द विजिटर अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटी, यू आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, तो परमिट मतलब तो अलाउ होता है ना, तो बढ़िया नहीं है। और इसमें भी इवन विदाउट अ गाइडेड टूर होता तो हम फिर भी कंसिडर करके, इवन गायब है। यही बात यहाँ पर सी में है, इवन नहीं दिया हुआ, गिव्स द विजिटर लिखा हुआ है, बस दैट्स इट। ऑल्सो एक ही अपॉर्चुनिटी की बात हुई है, जबकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज लिखा हुआ है। ठीक है, साकिब जमीन में गाड़ दूंगा मैं। इवन विदाउट अ गाइडेड टूर the visitor to the European Organization for Nuclear Research Geneva Laboratory has an unparalleled opportunity to learn about cutting edge particle physics research. This is the best way of writing it. Even नहीं लिखा हुआ ना गोविंद, साकिब। Gives the visitor an unparalleled opportunity to learn about cutting edge particle physics research even without a guided tour. ऐसे अगर हम इवन नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब ऐसा लगता है जैसे गाइडेड टूर अवेलेबल नहीं है, जबकि हम कहना चाहते हैं कि यार गाइडेड टूर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ठीक, हाँ, आई होप योर वाइफ्स अलाउ यू टू वर्क। यस, दीज आर 700+ क्वेश्चंस। आगे बढ़े कि बस हो गया? Your aim in life is to get married. I like how clear you are. Parallelism.
अब क्या करें, तुम लोगों का स्टैमिना ही नहीं है, थक जाते हो तुम सब, नाम की जवानी है तुम्हारी. You guys don't last 2 minutes in the class. Plummeting is falling. Not all? Okay. लगे रहो फिर. Don't stop. Because of the wireless service costs plummeting in the last year and mobile phones are increasingly common. कोई parallelism ही नहीं है आपस में. As the cost of wireless service plummeted in the last year and mobile phones became increasingly common. ये फिर भी थोड़ा ठीक है. In the last year, with the cost of wireless service plummeting and mobile phones have become increasingly common. गलत. With the cost of wireless service plummeting in the last year and phones becoming increasingly common. ये ठीक है. Parallel. While the cost of wireless service has plummeted and mobile phones are increasingly common, फिर से parallel नहीं है, गलत. तो दो ऑप्शन बच जाते हैं, B और D. अभी में कहता है many people now using. Many people are now using. बूझे ठीक है सबका. तो क्लास खत्म होते होते सब होशियार हो ही गए. ठीक है. तो अब आज हमारी शाम को 6 बजे क्लास है, स्पेशल क्लास, फ्री क्लास, सब आ सकते हैं. कोड रहेगा अनलॉक करने का, करिश्मा लाइव. उसमें हम 2 धांसू पैसेजेस करेंगे कैट 2022 के 3rd स्लॉट की, जो कि एग्ज़ाम में बहुत इरिटेटिंग लग रहे थे. एक पैसेज इज़ बेस्ड ऑन द ओरिएंटलिज्म वाला थिंग एंड द अदर वाला आई हैव फॉरगॉटन. Okay, so we'll do those 2 passages, 10 and 11. We have done the remaining 9 passages in special classes and on YouTube. If you want to solve them with me, you're free to do so, even if you're not an Unacademy subscriber. So 6 o'clock to 7:15 we have one class in which we are going to solve 2 RCs. Then at 7:30 we are doing RC genres, which is a plus class, and we are going to study psychology today. So that's the agenda for the remaining day. You have a break for some 5.5 hours. So chill, pill, study, enjoy yourselves. And I shall see you at 6 inshallah. ठीक है. Take care of yourselves. Have a good day ahead. And yeah, stay hydrated. It's pretty hot.